लास्ट टाइम हम लोगों ने ये देखा था कि एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एंड all of the how sound behaves in an enclosed space. So absorbent materials और sound absorbent materials या फिर acoustic materials कितने टाइप के होते हैं? So basic the requirements of a good acoustic material are that it should be durable. Obviously, simple सी चीज है, should be durable and it should not be liable to be attacked by insects या termites. जैसे कि wood होती है, जैसे plywood, ये सारी चीजें are prone to termite attacks या rotting या something like that, right? तो हमें ऐसा material choose करना होता है which doesn't rot, doesn't get attacked by insects and it is durable. Second, it should be easily available at a reasonable cost. It should be easily available क्योंकि you usually need sound absorbent materials in a large quantity, and अगर वो extremely expensive है it is, अगर वो easily available नहीं है तो उसको इंस्टॉल करना डिफिकल्ट हो जाएगा, उसको अक्वायर करना डिफिकल्ट हो जाएगा, which is not something we want, and it should be available at a reasonable cost, क्योंकि ऐसा एब्जॉर्बेंट मटेरियल नहीं यूज करना चाहिए जिससे हम लोग का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अनरीजनेबली बहुत ज़्यादा बढ़ जाए. So third point should be it should be efficient over a wide range of frequencies, क्योंकि साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स को ही एब्जॉर्ब कर पा रहा है, लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स रिवर्ब या एको क्रिएट कर रही हैं. So it should be able to absorb a wide range of frequencies and it should be fire resistant. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने ऐसा मटेरियल यूज किया which adds to another problem. So it should be fire resistant and it should be non-hygroscopic. Non-hygroscopic means it shouldn't absorb moisture. And moisture especially जो air में moisture present होता है, it shouldn't absorb moisture from air, so it should be non-hygroscopic and it should be heat insulating, so that हमें दो separate materials या systems ना install करने पड़े. One system should be enough for both heat and sound insulation. Then it should be self-supporting, या फिर it should be able to be fixed easily, meaning it should support itself. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें absorbent material को लगाने के लिए पैनलिंग की तरह कुछ plywood का फ्रेम लगाना पड़ा. That will add to the sound reverberation and echo का problem. So it should be self-supporting. उसे इंस्टॉल होने के लिए किसी और चीज की नए मटेरियल की जरूरत नहीं होनी चाहिए, and it should be capable of easy fixing, meaning अगर उस कोई पार्ट कोई पोर्शन खराब हो जाता है, टूट जाता है, डैमेज हो जाता है तो उसको इजीली फिक्स कर पाए ऐसा मटेरियल होना चाहिए. एंड it should give a pleasing appearance after fixing, meaning हम कुछ बहुत ही अगली बहुत ही बदसूरत सा एब्जॉर्बेंट मटेरियल लगा तो दें बट देन आपका जो इंटीरियर का लुक है वो खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए. Then it should give pleasing appearance, ये तो हो गया. Then it should have high coefficient of absorption. जो obviously coefficient of absorption क्या था? Coefficient of absorption was जो जितनी amount of sound energy
कन्वर्ट हो जाती है इन अनदर फॉर्म डिवाइडेड बाय द टोटल अमाउंट जो एब्जॉर्ब हो जाती है, दैट्स, ये तो पढ़ा था, do you not remember? Energy absorbed by the area to the energy striking the area, ये रेशियो is called absorption coefficient, जिससे हमें पता चलता है कि कितना efficient है कोई भी absorbent material. It should have sufficient structural strength. ये सेम चीज है, it should be self supporting and इतनी structural strength होनी चाहिए कि वो कोलैप्स ना हो जाए जब वो इंस्टॉल्ड होगा. ओके, इसमें कोई डाउट, कोई पार्ट रिपीट करना? मैम 6 पॉइंट रिपीट कर दीजिए. It should be self-supporting and it should be capable of easy fixing. Meaning it should be, अच्छा लिखने के लिए पीपीटी भी शो कर दीजिए. सॉरी, इंसुलेट करा. इंसुलेट शो कर दीजिए. पीपीटी शो कर दें, पीपीटी नहीं है. मेरी आवाज से समझो क्या मैं बोल रही हूँ. Insulation. It should be non-hygroscopic, HYGROSCOPIC, non-hygroscopic and heat insulating. Meaning it should not be affected by moisture content हवा में जो होता है, and वो heat insulation भी provide करे साथ साथ में sound insulation, क्योंकि हमें फिर दो मटेरियल्स लगाने पड़ेंगे, एक हीट इंसुलेशन के लिए, एक साउंड इंसुलेशन के लिए. तो ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो दोनों चीजें प्रोवाइड करे. ओके, यस मैम. ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज थी जो रिक्वायरमेंट होती है किसी अच्छे अकोस्टिक मटेरियल की. नाउ लेट्स सी कि क्या क्या टाइप्स होते हैं ऑफ एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स. नाउ लेट्स सी कि कौन कौन से एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स होते हैं. मोस्ट कॉमन एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स जो हम यूज करते हैं, एक होता है अकोस्टिक प्लास्टर. It is known as fibrous plaster and इसमें इंसुलेशन मटेरियल जो होता है, जो ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में होता है, वो प्लास्टर में मिला हुआ होता है या सीमेंट में मिला होता है. एंड जो क्वांटिटी होती है सीमेंट की वो ज़्यादा होती है, एंड मीनिंग जो प्लास्टर क्रिएट करते हैं उसमें जो सीमेंट की क्वांटिटी होती है, रेशियो होता है,
सीमेंट सैंड एंड वाटर होता है प्लास्टर, राइट? सो उसमें जो सीमेंट का रेशियो है वो ज़्यादा रखा जाता है, सो दैट उसमें उसकी पोरोसिटी बढ़ पाए एंड उसका इफेक्टिवनेस बढ़ जाए एज एन अकोस्टिक मटेरियल. सो acoustic tiles second, acoustic tiles पहला था plaster, second is tiles. इसमें ये these are usually made in a factory and they are sold under different names brand के according, and जो absorption होता है sound का वो uniform होता है टाइल से टाइल के बीच में, क्योंकि ये फैक्ट्री में बने होते हैं. इट इज रेगुलेटेड कि किस तरह से बनेगी, कितना उसका रॉ मटेरियल क्या होगा. सो इवनली साउंड एब्जॉर्ब होती है सब जगह. सी अकोस्टिक प्लास्टर इज बेसिकली जो हम ऑन साइड बना रहे हैं प्लास्टर, उसी में हम अकोस्टिक मटेरियल या उसका रेशियो डिफरेंट करके वी मेक अ फाइब्रस प्लास्टर जो हम दीवार पे लगाते हैं, राइट? तो अब मैन्युअली लगाया जा रहा है तो उसकी थिकनेस वेरी करेगी, कहीं थोड़ी ज्यादा होगी, कहीं थोड़ी कम होगी. इवन इफ वो देखने में एग्जैक्टली सेम लग रहा है, बट वो मे बी उसकी थिकनेस कहीं कहीं डिफर करेगी. एंड ऑल्सो बैचेस में बनता है सीमेंट, है ना? कभी एक बार में बन के पूरे स्पेस में नहीं किया जाता है, वो बैचेस में बनता है. तो एवरी डिफरेंट बैच कैन हैव अ स्लाइट डिफरेंस इन कॉम्पोजिशन, तो उसकी वजह से भी इवननेस नहीं मिल पाएगी अकोस्टिक एब्जॉर्प्शन में. बट टाइल्स क्योंकि वो फैक्ट्री में बनते हैं, क्योंकि वो टाइल्स होते हैं, तो उनकी थिकनेस इवन होगी, उनका एप्लीकेशन और जो अल्टीमेट रिजल्ट आता है फ्रॉम टाइल्स इज वेरी इवन and much better than plaster. But tiles, acoustic tiles are quite expensive. So it is only suitable for usage in small rooms, जहाँ पे certain area हमें acoustically डिजाइन करना है, वहाँ पे यूज करते हैं. We can't use it in big quantities क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है. क्योंकि हम लोगों ने एक रिक्वायरमेंट पढ़ी थी सेकंड की, इट शुड बी इजीली अवेलेबल एट रीजनेबल कॉस्ट, सो वी डोंट गो फॉर वेरी एक्सपेंसिव मटेरियल्स. देन थर्ड इज स्ट्रॉ बोर्ड. स्ट्रॉ बोर्ड जो पार्टिकल बोर्ड होते हैं, जो वुड के पल्प या पल्प से तो नहीं पर पार्टिकल्स एज इन वुड शेविंग से, जो वेस्ट मटेरियल होता है वुड का, वुड इंडस्ट्री का, उससे जो बनते हैं पार्टिकल बोर्ड, जो आपके टैग बोर्ड होते हैं, वो भी यूज होता है एज अ अब्जॉर्बेंट मटेरियल. एंड उसकी मिनिमम थिकनेस 13 mm होनी चाहिए फॉर इट टू बी साउंड एब्जॉर्बेंट. एंड देन फिफ्थ इज पल्प बोर्ड्स. पल्प बोर्ड्स जैसे MDF, हार्ड बोर्ड, ये पल्प बोर्ड होते हैं. मतलब सॉफ्ट स्ट्रॉ बोर्ड इज जिसमें हमने वुड को बिना पल्प बनाए उसके शेविंग्स एंड उसके रॉ मटेरियल को यूज किया. बट पल्प बोर्ड इज जिसमें हम उस वेस्ट मटेरियल को पल्प बना देते हैं एंड उस पेस्ट को ढाला जाता है इन अ बोर्ड का शेप. सो दीज आर सॉफ्ट बोर्ड्स जो कि प्रिपेयर किए जाते हैं बाय कंप्रेसिंग वुड पल्प एंड दे आर क्वाइट चीप, और उन्हें इजीली एज पैनलिंग, नॉर्मल पैनलिंग की तरह फिक्स किया जा सकता है. देन इतने मटेरियल समझ में आए? These are quite simple to understand. Any Yes, doubts? ma'am. No, ma'am. Okay. No, ma'am. Fifth is compressed fiber board. This is इसमें दो तरह के मिलते हैं. Compressed fiber board is basically fiber board जिसको हम high pressure के थ्रू बनाते हैं. एंड इसमें एक परफोरेटेड होता है, एक नॉन परफोरेटेड होता है. मीनिंग एक में परफोरेशन या फिर पोर्स होते हैं बहुत ज्यादा, एक में नहीं होते हैं या कम होते हैं. सो दोनों की डेंसिटी कम या ज्यादा होती है. देन अगर हम वो वुड पार्टिकल बोर्ड जो स्ट्रॉ बोर्ड था उसे भी कंप्रेस कर देते हैं, सो यू गेट अनदर मटेरियल व्हिच इज कंप्रेस्ड वुड पार्टिकल बोर्ड. एंड इसमें परफोरेशंस होते हैं, पोरोसिटी होती है, इसे पेंट भी कर सकते हैं.
एंड इसमें भी वही थिकनेस चाहिए होती है जो हमें स्ट्रॉ बोर्ड में चाहिए होती है. शुड बी 13 mm या उससे ज़्यादा थिकनेस का होना चाहिए फॉर इट टू बी एब्जॉर्बेंट. Next material is perforated plywood. Perforated plywood is basically a composite material, meaning ये दो तीन चीज़ों को मिला के बनता है, जैसे कि mineral wool and cement asbestos. ये दो चीज़ें मिला के बना सकते हैं या फिर mineral wool and hardwood मिला सकते हैं. And इसको जनरली सस्पेंड किया जाता है छत से, लाइक सस्पेंडेड फॉल सीलिंग जो होती है उसमें ये यूज होता है क्योंकि लाइट वेट बहुत होता है. एंड दिस वाज परफोरेटेड प्लाईवुड. देन एट मटेरियल इज वुड वूल बोर्ड. मटेरियल जिसका थिकनेस यूजुअली 25 mm या उससे ज्यादा होता है, मतलब ऑलमोस्ट 1 इंच. एंड जो इसको पैनलिंग के लिए भी यूज करते हैं बिकॉज इट हैज अ वेरी यूनिक टेक्सचर. सी दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. सो होल बोर्ड इसमें ऑलमोस्ट जम्बल्ड वायर जैसा लुक होता है. सो इसे हम एज अ पैनलिंग मटेरियल भी यूज कर सकते हैं. सी जैसे यहाँ पे यूज किया गया है, दिस इज यूज्ड एज अ पैनलिंग मटेरियल. एंड परफोरेटेड प्लाईवुड ये होता है, इसको टैप बोर्ड या पेग बोर्ड की तरह भी यूज करते हैं. सी ये परफोरेटेड प्लाईवुड होता है. एंड देन लास्ट एब्जॉर्बेंट मटेरियल इज क्विल्ट्स या मैट्स. जो दीज आर बेसिक क्विल्ट्स, पता है ना? सी आई शो यू. मिनरल वूल या ग्लास वूल से बनता है ये. दीज आर मैट, राइट? This is what it looks like. Right? ये क्विल्ट्स या मैट होती हैं, ये ग्लास वूल या मिनरल वूल से बनती हैं एंड ये ब्लैंकेट्स की फॉर्म में आती हैं. एंड इसके जो एफिशिएंसी होती है वो डिपेंड करता है कि आपके मैट की कितनी थिकनेस है एंड किस तरह से लगाया गया है, किस तरह से फिक्स किया गया है, एंड इसकी पैकिंग में क्या यूज किया गया है. एज यू कैन सी इसमें कोई बैकिंग नहीं है, राइट? तो हम लोगों ने जो एक पॉइंट पढ़ा था कि वो सेल्फ सपोर्टिंग होना चाहिए. दीज आर नॉट सेल्फ सपोर्टिंग. आपको ये इसे किसी चीज पे टैग करना पड़ेगा. ओके तो अब आप लोगों का आई थिंक एक ही चीज बची है अकोस्टिक्स में, ऑडिटोरियम को कैसे डिजाइन करना है टू बी अकोस्टिकली परफेक्ट. तो आई थिंक इसके लिए नेक्स्ट लैब में, आई थिंक कल ही है आईएस की लैब, बी प्रिपेयर्ड विद अ शीट. ओके, तो हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ये बनाते भी जाएंगे. ओके मैम.
Yes, yes. Thank you. Thank you, ma'am.